Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji Ke Saath Guruvar 2.0, that we started on 10th April 2025 under the mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namolle sir. And this is our session number 115. I feel blessed and honored to welcome today's speaker, none other than our beloved Guruji. So, friends, this is a bonus session from Sir to all of us. So, first, I would like to thank you, Sir. So, there are few people who are new to this session today. So, I would like to introduce and say a few words about Sir. Dr. Liaquat Namolle sir is most eminent and passionate homeopath from Nashik, Maharashtra. Sir has more than 31 years of experience and he has conducted more than 500 seminars and webinars all over. Sir has conducted nationalized seminars on specific diseases like skin diseases, diabetes, pediatric infertility, etc. Sir's motto is to convert 10,000 GPs towards homeopathy. And till now, Sir is successful in converting more than 2,000 GPs towards homeopathy if they are now practicing 100% homeopathy, but along with general practice. Sir is a pioneer of the group that is Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors learn on daily basis. Sir has discovered an unique method, MML, that is Mind Method by Dr. Liaquat. The focus of MML is practicing solely on mind, and empathy is the mantra. Dr. Liaquat sir is a master of gestures. He is one who has introduced gestures in homeopathy. Through sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, which is the blessing to the world of homeopathy. He is an author of bestseller book, Humanopathy, that most of us have already read. And till now, more than 20,000 copies have been sold, and Sir is working on the second edition. And I would like to say more words that Sir is teacher by passion, not by profession. So we are lucky to have Sir with us as our Guru. We call Sir as our Guruji. So thank you, Sir. And I request all of you can unmute and welcome Sir with a huge round of applause. Welcome, Sir. Over to you. Thank you so much. Thank you for such a profuse introduction. Okay. Just a moment. I'm just. Okay, guys. So today I am here with a case. Actually, I wanted you all to understand how to think in emergencies. Every time we deal with emergencies, you know, and we actually don't understand. We cannot figure out कि कैसे शुरू करें, है ना? कहाँ से शुरू करें, कैसे क्या रख दें, अपने को समझ में नहीं आता क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज कहता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर फिर आप माइंड मत लो या फिर ऐसा कुछ स्ट्रोक वगैरह का पेशेंट है माइंड उसके अंदर मिलता नहीं है हालांकि दिस पेशेंट इज नॉट अनकॉन्शियस दिस पेशेंट इज अफोनिक. Okay, this is a case of a lady, I think 71, 72 years old. She happens to be mother of my junior doctor. The doctor is not practicing. He's working in a government organization where his father died 20 years back. Because it's a central government job, he took the job, okay, and he's working. There's good amount of payment that they get in central government. You know? So he's got that job. So he's a mediocre type of a person, very simple, sober man. Very sober. I did, okay. So he's got married to his mama's daughter. That happens to be the patient's brother's daughter. Okay.
and he's got two sons, as I described in the case. Two sons, one son is a doctor. He's got married recently, a year, 2 years, 2 or 3 years back. So the grandson of the patient also has got a son. Okay, and the patient so the patient plays with the child, okay, the great grandchild. Okay, उसका पूरा दिन वो बच्चे के खेलने में जाता है. Patient is not obese, quite healthy, sort of like, well built, not really very emaciated. 74-75 की एज में जैसा होना चाहिए वैसा है. ओके, बिल्ड और खेती में काम वगैरह, मतलब वेल ऑफ, दे बिलोंग टू क्वाइट वेल ऑफ फैमिली. वेल ऑफ एज इन खेती बाड़ी है, मिडिल क्लास, ठीक है, गांव की है. सो वेरी रॉ, नॉट वेरी रिफाइंड टाइप ऑफ पर्सन. ज्यादा नखरे भी नहीं है शहर के लोगों के, है ना, घर में एलेक्सा वगैरह वो वाले नखरे नहीं है. समझ रहे हो, मतलब एकदम सिंपल सी जो अपनी एक किसानों वाली जिंदगी है, एजुकेटेड, पैसे कमाए हुए वैसी. ठीक है. और जैसे कि मैं पूछा बेटे को कि इनको कुछ हुआ था क्या, क्योंकि अपन अफोनिया, और आप लोगों ने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ हिमरेज इन द ब्रेन. देयर आर, मैं आई शेयर द रिपोर्ट विथ यू. सो आई हैड आस्क्ड, है ना, कि वाज देयर एनी इंसिडेंट्स बिफोर दिस थिंग हैपेंड, एनी इंसल्ट और एनीथिंग, कुछ चिंता? तो बोले नहीं, मैं चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि वो लड़का कभी शराब नहीं पीता. मतलब मेरा जो दोस्त है डॉक्टर, जो ओनली सन द पेशेंट हैज, शराब नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नो बिगड़ा हुआ, नॉन वेज भी नहीं खाता इनफैक्ट. समझ रहे हो, इतना मतलब वो सो कॉल्ड ये है, सोबर है, और बच्चा अच्छा है, लाइकोपनी में है. ही लुक्स लाइक लाइकोपनी, वेरी मच लाइक, वेरी मीडियोकर, टिपिकल मीडियोकर, है ना, टिपिकल मीडियोकर जेंटलमैन, यू कैन से, सिंपल. कभी उसको मैंने शर्टिंग में नहीं देखा, पता है आप, शर्टिंग भी नहीं करता, मतलब शर्ट भी उनका बाहर रहता है. तो वही वो टिपिकल गांव वाला. प्रैक्टिस भी करता है शाम में, शहर में रहने को, नासिक के आउटस्कर्ट्स में, बट लिव्स इन सिटी ओनली. ओके, सो दिस इज द केस. मतलब दिन भर ये रहती है, लेडी इज इन प्लेइंग विद द ग्रेट ग्रैंडसन, एंड another grandson is also getting married now. तो आई आस्क्ड कि क्या चिंता विंता, तो उसने बोला कि मम्मी सिर्फ ये बोलती कि मेरी बहू का क्या होगा, क्योंकि वो बहुत भोली भाली है, उसके भाई की लड़की है. तो उसको कंसर्न अपने भाई की लड़की का है, क्योंकि बहुएं अभी आएगी दोनों. मतलब बेटे की बहुएं जो है, दोनों भी पढ़ी लिखी है, बेटे पढ़े पढ़े लिखे हैं, है ना. मतलब ग्रैंडसन जो है, एक ग्रैंडसन इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल, दिस ग्रैंडसन इज अ डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाउ, जस्ट रिसेंटली गॉट जॉब इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. बीएमएस किया है उसने, बट वो आयुष की तरफ से लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसको वो जॉब भी लग गया. मतलब इनके घर में जॉब का कल्चर है. आप समझ रहे हो, इनका हस्बैंड भी जॉब करता था, बेटे ने भी डॉक्टर होने के बावजूद जॉब लिया. दूसरा ग्रैंडसन भी जो है, वो भी बीएमए से जनरल प्रैक्टिस करता माशाल्लाह से, तो ही वुड हैव बीन, सक्सेसफुल, आई मीन मेकिंग मनी एंड ऑल, बट ही आल्सो चोज टू हैव अ जॉब. वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको जॉब लग गया. दूसरा भी ग्रेट ग्रैंडसन जो है, ही इज ऑल्सो वर्किंग इन बॉम्बे. तो एक जॉब का कल्चर है, ठीक है. और लेडी भी पढ़ी लिखी नहीं है बहुत ज्यादा, बस 7वीं 8वीं होगी पुरानी, ठीक है. बट उन्होंने जॉब नहीं किया फैमिली के लिए, ऑब्वियसली नहीं करते थे पहले, है ना. बिलोंग्स टू मराठा कम्युनिटी, फार्मर्स, द मेजोरिटी फार्मर्स कम्युनिटी. जैसे गुजरात में पटेल है, राजस्थान में आपके ये है, जट है, मतलब हरियाणा में वगैरह. तो वो टाइप की कम्युनिटी है. चौधरी, है ना, ये बिहार में यादव है. तो दैट कम्युनिटी बेसिकली, ठीक है. बस दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड. एंड मेरा तेरी बहुत फिक्र करती रहती है क्या, है ना, कि तू घर पर आया कि नहीं आया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करता है. तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, पूछती है. जैसे मैं आता हूँ तो इमिडिएटली खाना वाना परोसने के लिए खुद ही आती है आगे आगे, है ना. मतलब ये दुखा वो दुखा बेटे का, वो करती है सारा. दिस इज द MRI रिपोर्ट, जस्ट चेक दिस.
कि फोकल एरिया ऑफ डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन विथ T2 हाइपर इंटेंसिटी इन्वॉल्विंग लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑब्वियसली सजेस्टिव ऑफ acute infarct. ओके, अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब है तो मतलब राइट साइड में पैरालिसिस होना चाहिए. लकीली शी हैज नॉट डेवलप्ड पैरालिसिस. उसको तकलीफ हुई, इमीडिएटली बेटे ने उधर ही घर के करीबी हॉस्पिटल उसके दोस्त का उधर एडमिट कर दिया. फ्यू फोका ऑफ T2 हाइपर इंटेंसिटी in bilateral frontal and parietal white matter suggestive of chronic ischemic changes. Please remember this. Chronic ischemic changes is very important here. There is no flow related opacity. Okay? Opacification in superior division and minimal flow in the inferior division of M2 segment and severe paucity of flow in cortical branches of left middle cerebral artery, possibility of thrombosis. And I spoke to the consultant. He said possibility that the blood vessels, the arteries have become narrowed, right? क्योंकि narrowing होता है तब जाके chronic infarcts होते हैं. वो क्या दिखा है उसमें? Chronic infarcts है. The head has chronic, brain has chronic infarcts. अब ये acute थोड़ा बड़ा हुआ तो अभी speech loss हो गया. ठीक है? So I was just trying to, get information for why the lady lost speech. इसीलिए I was thinking about कालिका कि अकेली माँ है, तो इसीलिए I asked कि ये तेरी चिंता करती है क्या? तो नहीं बोले, बस मैं जब आता हूँ तो मेरे आगे आगे फटाफट मुझे ये दे, मुझे वो दे, वो करती है. ऑब्वियसली एक बेटा है, तो ऑब्वियस है. बेटा इज नाउ like 2 years younger than me, so it must be 50, है ना? 50, yeah. 2 years or 1 year is 2 years junior to me, but must be a year younger than me. So must be 50. So this is the case. Okay. Now I want you all to discuss this case और मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकली कैसे अपन इसमें जाए और कैसे रेमेडी पर हम लोग पहुंचे. चलिए. हेलो. या हाँ, एंड हाइपरटेंसिव है. शी इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एब्सोल्युटली रेगुलरली. ब्लड थिनर एब्सोल्युटली रेगुलरली. यस. हेलो. यू कैन अनम्यूट एंड डिस्कस विथ मी प्लीज. आप लोगों को केस समझ में आई है या दोबारा समझाऊं? लेडी 74-75 years old, speech lost with cerebral hemorrhage. Husband died 20 maybe 20 years back. बेटे ने फिर बाप की जगह पर जॉब कर लग गया. उस बेटे को 2 बेटे हैं, जिसका बड़ा बेटा डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका बच्चा है. वो बच्चे के साथ पेशेंट खेलते रहता है. पेशेंट की बहू जो है उसकी खुद की भांजी है, मतलब उसके भाई की बेटी है. पेशेंट को अपनी भांजी की चिंता होती है बस कि इसका क्या होगा मेरे बाद में. दिस इज इट. क्योंकि वो भोली भाली है. मगर बेटा भी एकदम अच्छा है, टी टोटलर है, एब्सोल्युटली एब्सेंस ऑफ मैलिस है, लाइकोपोडियम टाइप का बच्चा है, सोबर टाइप ऑफ सन. यस. हेलो. And since this is Sir, working yeah, in BSNL, that is a corporation, it is a PSU, so he can practice also. So he's not working as a doctor in the BSL, but he's got medical bill pass करने का उसके पास में टेबल है, because he's a doctor. वो बिल वगैरह पास करता है, बस इतना सिंपल. हाँ जी, बोलिए. यस प्लीज. सर एक ब्रॉड रूब्रिक थोड़ा होता है एंग्जाइटी अबाउट द रिलेटिव्स, क्योंकि वो भांजे की बहुत चिंता करती है. वी कैन थिंक फॉर दिस रूब्रिक. एंग्जाइटी रिलेटिव्स अबाउट ऐसा रूब्रिक नहीं है बेटा. केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट ऐसा रूब्रिक. अच्छा अच्छा, हाँ एंग्जाइटी बराबर, फैमिली एंग्जाइटी अबाउट. ना बराबर है, या वेरी ट्रू सर. शी केयर्स फॉर हर भांजी. वेरी ट्रू. बट इसी केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट. अच्छा हाँ हाँ. है क्या? उसके नहीं, दिमाग में उन्हें भांजी कॉन्सेप्ट क्या, वही है. भांजी, हाँ भांजी के बारे में ही बताया है कि उसके बाद नहीं उसका नहीं, क्या बट होगा. is it cares full of? But rubric is cares full of relative. हाँ Is she नहीं, full वैसे of नहीं है. cares? नहीं, वैसे तो उसने बताया नहीं आपको. नहीं है ना.
मतलब बराबर कॉन्स्टेंटली उसको उसी की पड़ी रहती है, उसी की गौरव फिक्र में पड़ी है, ऐसा नहीं। बिकॉज बराबर है। पैसा पानी सब कुछ है ना, बेटा भी तो अच्छा है, और उसके बेटे की हाँ मामा की लड़की है, तो ऑब्वियसली बेटा, और उसका साला भी डॉक्टर बेटे का, वो भी मेरा हाँ स्टूडेंट ही है, पेशेंट हाँ। है, स्टूडेंट है सब। ये तो जूनियर है मेरा, बट ही इज माय स्टूडेंट आल्सो, ही अटेंड्स ऑल द क्लासेस ऑल द। ओके सर, उसने कुछ बताया उसके बीमारी के बारे में, कुछ बताया? बिकॉज शी इज अफोनिया है ना, ऑफ बाय साइंस एक्चुअली। अफोनिया है ना, शी लॉस्ट द हाँ स्पीच। बराबर, ऑफिस है, वेरी ट्रू वेरी तो ट्रू। कुछ भी नहीं है ना मिला, मैं जाके मिला पेशेंट में, इसलिए शूटिंग भी नहीं किया। ठीक है, मैंने अभी अच्छा अफोनिया का क्या शूटिंग है, तो मैं वीडियो दिखा रहा था, अफोनिया क्या शूटिंग है, मैं जस्ट गया, मैंने कैसे क्या है, बराबर। तो बस इसने बोला कि मम्मी मेरे दोस्त है डॉक्टर है, मेरे सर है, तो उसने बस नमस्ते करी, दैट्स इट। ओके। जो भी मैं प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे पेशेंट के बेटे ने दिया, बस। अच्छा। और जो मैं कंसल्टेंट के पास बैठ के जो मेरा ये हुआ, उससे मैंने किया। ओके अच्छा, आई थिंक हो रहा सर, या हेलो, यस जी, और बोलिए कोई, किसको कुछ पूछना है बोलिए। हेलो, एनी क्वेश्चन? आई वॉन्ट यू ऑल टू, जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोले कि पॉसिबिलिटी है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव, और सोचो ना, लॉजिकली सोचो कि क्या हो सकता है ऐसी। देखो पेशेंट माँ है, विडो है, बराबर है, ये तो है, यस सर। 20 साल से वो अपने। यस वीरेंद्र, यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो पेशेंट माँ है, ठीक है ना, और क्या है उसका, कि शी इज बीन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बराबर है, उसने, देखो सोचना शुरू करो कैसे, कि पेशेंट ने शादी किससे कराई बेटे की, अपने भाई के बेटे से, के बेटी से। समझ गए? बहू कौन सी लाई उसने, अपनी फैमिली की लाई, यहां से सोचना शुरू करो, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये क्या है फिर, व्हाट इज दिस? सर ये ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल प्रेजुडिस। प्रेजुडाइज का है इसके अंदर, लेकिन ट्रेडिशन कहाँ है इसका? ये अपनी एवर्शन ऑफ। सिक्योरिटी, हाँ, बोलो और कोई, और मतलब कोई। अपने, मतलब हाँ इनसिक्योर तो होगी तो अपने हिसाब से जो इसने सब प्रोग्राम किया, ऐसा सोचे सर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन प्रोग्रामिंग जितना उसमें ये है, मतलब क्या क्या, यू आर थिंकिंग अबाउट आर्सेनिक, आयो? नहीं सर, आर्सेनिक नहीं, बट उसने सोच समझ के ही किया कि भाई जैसे सास बहू में होना जैसे रहता नहीं है, पर उसने अपने हिसाब से अपने भाई की ही मतलब बेटी को लिया। उसको विवाह बना के लाया, तो इसका इसका क्या मतलब लोगे आप लोग, इसका क्या मतलब लोगे आप? सेल्फिश। कैसे सेल्फिश इसमें, हाँ, बोलो बोलो शर्मा, मीता। कॉशियस है सर, केयरफुल है कि आगे जाके कहीं और कुछ तकलीफ ना हो जाए अगर स्ट्रेंजर कोई घर में लाएंगे, तो ये नोन पर्सन थी, पता था सब। सो केयर, कॉशियस थी के कॉशियस से केयरफुल, क्या लगे इसमें, कॉशियस से केयरफुल, बोलो। कॉशियस सर लेंगे, क्योंकि फियर ऑफ अननोन जैसे लग रहा था कि अगर कोई स्ट्रेंजर आएगा आएगा, सो विल आई बी एबल टू मैनेज हर, या कैसा होगा कि कैसे करना पड़ेगा। सो एक सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ रहना चाहती थी वो नॉन एनवायरनमेंट में। तो देखो ना, एक विडो है, तो उसके लिए सेफ्टी ढूंढना सही है गलत है? सही है सही सर। है सर। सही है सर, सही। तो फिर ये पैथोलॉजी नहीं बनेगी ना? सर इसका देन एक कारण देन और दिस विल हो नॉट सकता। बिकम, देन दिस विल नॉट बिकम पैथो, इसका, हाँ बोल बोल क्या बोल रहे हैं, बोल।
सर जीएनएम का नॉलेज इतना नहीं है, पर ऐसा जैसे लेफ्ट फ्रंटल लोब पे है ना, तो जीएनएम के थ्रू सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉजिकल पर्सन है क्या, या बॉडी पे जैसे पैरालिसिस तो नहीं हुआ बट वहीं पे इंफ्राक्ट हुआ है, तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी माइंड में, उससे रिलेट कर सकते हैं जीएनएम से। क्या क्या रेट करेंगे, क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली बताओ, बी स्पेसिफिक। कि सर वहां पे ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, बट बॉडी पे जैसे आपने बोला ना कि राइट उसमें नहीं वो पैरालाइज समझ होना गया, चाहिए था। आप इससे लॉजिकली क्या आप मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल जीएनएम से, आई वांट टू नो। सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। आप बोलिए चौहान जी, आपका स्पीकर ऑन है, डॉक्टर चौहान। मानसी, जीएनएम क्या बोलता बेटा? डॉक्टर मानसी मैडम जीएनएम का देखती है हमारा, तो शी विल टेल अबाउट जीएनएम। यस मानसी, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो एंड से, और मीनवाइल एक सिंपल समझो, ये इसने बेटे का भी सिक्योरिटी देखी ना, हेलो, ये करके पेशेंट ने बेटे को भी सेव कर दिया है ना, मामू की लड़की लाके, हेलो, क्योंकि यस एक सर। जनरेशन बाद में भी मामू के मतलब इसके मायके से इनका रिश्ता बना रहेगा, हेलो, दो हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एक, क्या बोलते हैं इसको, एक तीर में दो शिकार। कैसे? एक, इसको जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने वाली है पेशेंट को उसके माँ बाप के घर से, बेटा दामाद करने के कारण मामा लोग भी उसकी उधर की प्रॉपर्टी उसको देंगे, बराबर है। और यहां पर भी उसके ससुराल से भी जो मिलने वाली है, अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसके भाई लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो उनके बेटी को जाने वाली है, मायके वालों की। आप समझ रहे हो? यस सर। मतलब पेशेंट को मायके से जो भी मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पेशेंट को ससुराल से भी जो मिलने वाला है, जो उसके बेटे को देगी वो, जो बहू को जाएगा, तो मामू लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसने बेटे की भी सेफ्टी देख ली है एक, दूसरा खुद का भी सेव कर लिया है मायके से सपोर्ट। और एक चीज आप समझिए, जब भी कोई औरत विधवा होती है तो उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? हेलो, मायके से। मायके से। तो मतलब इसने मायके वालों की भी बात मानी है, हेलो, आप समझ रहे हो? बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि मायके वालों को भी मिल गया ना कि यार गवर्नमेंट जॉब वाला है लड़का, डॉक्टर है, और अपनी बहन का बेटा है, समझ रहे हो? तो मायके वाले भी खुश हो रहे हैं, समझ रहे हो आप ये सब चीजें? मतलब कितना सॉलिड इसने सब चीज बना करके आके रखा हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है आपके, नहीं समझ में आ रही है? हाँ जी सर सर। यस सर। तो इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल टू हैव सच थिंग, राइट? हेलो, हम्म, जी सर। सही है नहीं? हेलो, सही है सर। ये 20 ईयर से विडो है, उसने फिर उस हिसाब से सब किया है। मतलब, और दूसरी बात, और मेन बात समझिए, अब देखो, इसको इन्फाक्ट कहां पर हो रहे हैं? ब्रेन में हो रहे हैं। वो भी कैसे है? अक्यूट नहीं है, क्रॉनिक इन्फार्क्ट से, अभी अक्यूट तो बड़ा हो गया, अभी क्रॉनिक इन्फार्क्ट से, हेलो, मतलब ब्रेन में इसके पहले से थोड़ा 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 खून का बहाव हो रहा है, और ब्रेन के छोटे छोटे हिस्सों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण इसका ब्रेन का हिस्सा डेड होता जा रहा है, इन्फाक्ट हो रहा है, बराबर ना? इन्फाक्ट हो रहा है मतलब वो हिस्सा डेड हो रहा है।
मतलब इसको प्रेशर कहाँ पर है? हेलो, ब्रेन में। दिमाग में है सर। दिमाग पे है। मतलब ये लड़ी कहाँ से सोचती है, दिल से या दिमाग से? दिमाग से। दिमाग से सोच। समझ गए? अगर दिल वाली होती तो दिल को बात लगती, हार्ट अटैक आता। हेलो, सही है सर। आप समझ जी रहे सर। हो? हाँ सर। हार्ट अटैक आता है, या तो फिर डर अगर होता तो लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है। समझ रहे हो? अगर इसके टेरिटरी में कोई आया होता तो किडनी में किडनी प्रॉब्लम में। आया होता। इमोशंस अगर इसके अंदर वैसे ज्यादा होते तो इसके, अपन बोलते हैं ना, डोक्यात जाते थी, ये दिमाग में जा रहा है, इसके चीजें इसके दिमाग को लग रही है। बराबर है? वही अगर उसको स्टार्वेशन इश्यू होता तो इट वुड हैव गॉन टू लिवर। हेलो, गुस्से वाली होती बहुत ज्यादा, नहीं क्या, बहुत चीजें ऐसी जहां पर उसको गुस्सा करना पड़ रहा है और गुस्सा ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही तो दांत जाते, मतलब बाइट बैक नहीं कर पाती तो दांत छड़ जाते। बहुत गुस्सा ऐसा सप्रेस करना पड़ा तो कहा पाइल्स होते ज्यादा से ज्यादा। आई यू गेटिंग मी? मतलब आप ऐसा करो, you draw everything, your anus is also drawn up. Hello, are you getting me? So when you hold anger, you get piles. Are you getting me? When you Yes, hold sir. anger, you get piles. This is when you're not letting the anger go. You see, अगर आप ऐसा करके देखो, आपका एनस अपने आप ऊपर आएगा, anus will be contracted. This is how GNM is developed. Hello, please remember, ये जो सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स जिसको अपन बोलते हैं, ये ऐसे ही डेवलप हुआ है। डर पे क्या होता है? आपकी सांस रुक जाती है। सिंपल। आपको कुछ चीजें घर में हजम नहीं हो रही है, नॉट लाइकिंग, नॉट लाइकिंग, कुछ बातें हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये क्या चल रहा है भाई, कुछ बोल कर कुछ रहे, तो आपको आईबीएस होता है, या स्टमक रिलेटेड कंप्लेंट होती है, या इंटेस्टाइन रिलेटेड कंप्लेंट होती है। दिमाग में क्रॉनिक है, अक्यूट होता तो मैं वुड हैव थॉट ऑफ कि यार कुछ तो गुस्सा आया है और ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एपोप्लेक्सी हो गया है ना? बट दिस इज एक्चुअली क्रॉनिक इनफैक्ट्स। इसीलिए मैं इस रेमेडी तक पहुंचा हूं। मैं बता दूंगा आपको क्या रेमेडी तक पहुंचा। जेएनएम का मानसी, आर यू रेडी विद जेएनएम? It is acute anxiety attack or powerless conflict. पावरलेस, Conflict of being powerless. conflict of being powerless and acute anxiety. Acute anxiety. See this, huh? Powerless and acute anxiety. अब इसको कहीं भी, मतलब प्रॉब्लम का चल रहा है, पावर का ही चल रहा है ना? हेलो, और कुछ भी वजह हुई नहीं, मैं सब पूछा मायके का, इसका उसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके, ये लेडी की मायके वाले का तो क्लिनिक, मायके वाले तो मेरे वो दूसरे वाले क्लिनिक के पड़ोसी ही है उधर के, और वो लोग भी मेरे पेशेंट्स हैं काफी, उनके घर में गए तो मैं जानता हूँ उनको अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसके जीवन में कई बार ये अपने आप को बोलने से रोकती आई है, ससुराल में या मायके में कई ऐसी चीजें हो रही होंगी, पता नहीं, बट अफोनिया तक आ गई। हेलो, इसने पावर लॉस नहीं होने दिया मानसी, इसने, समझ रही है, इसने Yes. पैरालिसिस नहीं होने दिया, Hmm. लॉस ऑफ पावर नहीं होने दिया। उसने कहां पर रोक लिया, कहाँ रोक लिया चीजों को? स्पीच पे रोक लिया। Hmm. मतलब उतनी स्ट्रांग है Hmm. भाई। दिमाग में ब्लीड हो रहा है, इधर नहीं आने दिया। आर यू गेटिंग मी? दिमाग में उसने ये कर लिया, नीचे नहीं आने दिया। बेलाडोना जैसे नहीं, बेलाडोना बोलता है डोकेला शॉट नहीं, मतलब उसने दिमाग को शॉट नहीं लग रहे, इसके दिमाग में शॉट लग रहे सिंपल भाषा के अंदर। हेलो, आप समझ रहे हो ना? एकदम सादी भाषा में हम लोग बोलते, बॉम्बे की भाषा हमारी, कि डोकेला शॉट को यार, मतलब दिमाग को सरदर्द, हेडेक नहीं बनता अपने को। जबकि इसका क्या है, इसका हेडेक ही है, और ये ब्लीड होने रही हो रही है, ब्लीड हो रहा है, और इन्फेक्ट हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, क्रॉनिक है। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई वहां की, क्लॉट जम गया है यहाँ पे, इधर नहीं।
समझ रहे हो? दिल पे नहीं ले रही ये लोग, दिमाग से, क्योंकि दिल पे लेना इसको परवड़ेगा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड गुजर गया, बेटा अकेला है, तो ये दिल से नहीं दिमाग से इसको चलना है, इसीलिए उसने दिमाग से ही बेटे की शादी कराई। तो दिस इज अ इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो, आर यू विथ मी गाइस? सो यस दिस सर। इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट rubric that should come to your mind is, although I did not take, I took the overall, I took the overall picture, I mean, but to make you understand, this is an intellectual type of personality. All right? Okay, bigger. But you will not believe, the remedy is not there intellectual. Complete dynamics, I don't know. Okay, but the lady is working with brain. आपके दिमाग में फिर एक रूब्रिक आएगा, इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट। वैसा नहीं है यहाँ पर, इसको ये चीजें ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बीइंग इमोशनल। लेकिन ये लेडी इमोशनल है कि नहीं है? हेलो, इमोशनल है सर। है कि नहीं है? है सर, क्योंकि वो केयर कर रही है अपनी डॉटर इन लॉ की, वो भी अपने जाने के बाद भी क्या होगा वो सोच रही है। एग्जैक्टली, अपने भाई की बेटी की तक फिक्र कर रही है। दूसरी बात, इसने अपने भाई की बेटी को घर में ब्याह के लाई है, ताकि वो बच्ची का भी अच्छा हो जाए। मतलब इसने अपने भाई की भी सोची है, भाई की बच्ची की भी सोची है। समझ रहे हो? और अभी भी भाई की बच्ची का सोच रही है। अभी भी बेटा आता है तो ये उसके आगे 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 आती है, उसको पानी दे, ये दे, सब करती है। तुम समझ रहे हो? मतलब बहू को भी ये तकलीफ नहीं लेने दे, बहू को भी ये ज्यादा तकलीफ नहीं होने दे रही। आई यू गेटिंग मी? मतलब इमोशनल तो है, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ में चल रहा है? इमोशंस और इंटेलेक्ट में चल रहा है। तो दिस इज अ पर्सनैलिटी हु इज नॉट टोटली ड्रिवन बाय इंटेलेक्ट nor by emotions. Hello, are you getting me? Yes. समझे? So this conflict, now tell me, in spite of having so many infarcts in the brain and acute infarct, this lady did not develop hemiplegia. क्या हुआ उसका? स्पीच उसने रोक लिया। मतलब इसने क्या किया? इसने अपनी जबान बंद कर दिया। बंद कर दिया है। समझ रहे हो लॉजिकल थिंकिंग क्या है? इसने अपनी जबान बंद कर दिया। बोलो फिर अभी, अब बोलो, अब बताओ, सिंपल है। चलो, अब बोलो, बहुत सिंपल है अभी, बोलो अभी। सर, हार्मनी डिजायर हो सकता है कि कुछ घर पता में है क्या तुमको ये? पता है क्या ऐसा कुछ है क्या? नो सर, क्योंकि स्पीच तो चली फिर गई ऐसा ना तो एज्यूम मत करो, एज्यूम मत करो, एज्यूम मत करो, प्लीज एजम्पशन पे मत चलो। ठीक है, ओके सर। बोलो। तो ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? शब्द निगल ले रही है, जबान रोक ले रही है। टैसिटन नहीं, टैसिटन तो बात नहीं करना चाहता, इसने रोक लिया है। तो ये क्या करती है? जिंदगी भर इसने क्या करती आई है? गुस्सा, इमोशंस क्या किया है इसने?
Even अंदर in बनाते हुए के लिए है। समझ रहे हो? इसके लिए मैं आपको एकदम सॉलिड रूब्रिक भी दूंगा, लेकिन आप सोचो कि ऐसा कौन सा बंदा है मैथमेटिका में का एकदम सिंपल चुना भी कि जो अपने Step is अपने आप को रोक लेता है, हाँ? step. स्टेपिसाइड स्टेपिसग्रिया, एलोज एलोज को बोलते थे। दिस इज स्टेपिसग्रिया। Hmm. देखो, एकदम सिंपल रूब्रिक है। मैंने जब पी लिया बोला तो आपको समझ में आया है ना? Hmm. स्पीच swallows his words। और एक चीज, मेन रूब्रिक, मैं जो जीत गया काइपर से क्या पता है? एंगर विथ वॉइस कंप्लेन्स ऑफ। एक विडो है, इतने साल से अपने आप को खड़ी करते करते आ रही है। इसने क्या किया हुआ है? अपना गुस्सा क्या किया है? वॉइस नहीं कर पा रही। शी इज नॉट एबल टू वॉइस एंगर विथ वॉइस कंप्लेन। मैं इतने पेशेंट को स्टेबिलिसेग्रिया देता हूँ, स्पेशली हाइपरटेंशन या जहां पर घर में क्लैशेस चल रहे हैं, वो आदमी उस बात करते करते उसकी आवाज चली जाती है। आपने देखा है सर? Hmm. यस बोल नहीं सर। पाता, बोलते बोलते बात चली जाती है। दैट इज स्टेबिलिसेग्रिया। हाँ देखा। अंडरस्टूड? होते ना, बिल्कुल आपने सर। देखे कई लोग हाँ गुस्सा हाँ कर रहे हैं, गुस्सा करते करते उनकी आवाज चली जाती है, एज इन टेम्पररीली। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? क्या है तुम लोग के? कैसे लोग हो तुम लोग? समझ नहीं बात, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, समझ नहीं। छोटे बच्चे भी देख लो आप लोग, मम्मी ये क्या क्या कर रहे हो अब? ये बार क्या? हेलो? Yes, sir. छोटे बच्चे, मैंने ऐसे कई छोटे बच्चे देखे हैं, कई छोटे बच्चे देखे। मैं बोलता हूँ इसका ये गुस्सा कैसे करता है मुझे बताओ। ऐसे छोटे बच्चे, अगर वो गुस्सा, सब सर इसके पास गुस्से में देखा नहीं जाता है, खत्म। मेरा होता है जेस्चर्स मेक्स एंगर, एंग्री, बराबर ना? ललका मारा और एक दो लोग हैं उसमें, जेस्चर्स मेक्स एंग्री। और ये सर बात इतना चीखता है सर, इसकी चीखते चीखते आवाज चली जाती है। हेलो? अपन जाते हैं अर्जेंटम मेटालिकम देते हैं, बराबर हम्म, ना? अपने को लगता है ओवर यूज ऑफ वॉइस से हो गया। अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम मे बी विल, मेटालिकम विल हेल्प फॉर टाइम being, but recurrence will happen, and then you come to staphysagria. Fail, you fail. I also had given argentum metallicum first. वही ओवर यूज ऑफ वॉइस बोल के, वन अर्जेंटम नहीं। दिस इज एंगर विथ वॉइस कंप्लेंट्स ऑफ एंड swallowing words, स्पीच swallowing words। कई लोग नहीं कहना, नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ बात ऐसा बोलते हैं लोग, कई कई नेता। आप लोग क्या बताऊं, बता दूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। मैं अपने आप को रोक ले रहा हूँ। अगर मैंने कच्चा चिट्टा खोलना शुरू किया तो बहुत निकलेगा। मैं अपनी जबान बंद कर ली, बोलते ना ऐसे लोग। दैट इज ऑल्सो सॉल्विंग वर्ड्स। उसके अंदर थूजा और स्टेपिसग्रिया है, हम्म, दोनों भी मैनिपुलेटिव है। हेलो, प्लीज रिमेम्बर, आप बिलीव नहीं करोगे, थूजा भी मैनिपुलेटिव है, स्टेपिसग्रिया भी मैनिपुलेटिव है। तो ये मैनिपुलेशन भी होता है। अगर वो स्पीच दे रहे हैं और आप पे रोक रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन होता है ना उनका, कि मैं बता नहीं चाहता, बता दूं तो फिर क्या क्या खुल जाएगा इनके राज। मैं अपने आप को रोक ले रहा हूँ, बोलते हैं ना ऐसे नेता लोग कई बार, तो मैनिपुलेशन होता है उनका। आर यू विथ मी गाइस? हेलो? यस सर। समझ में आ रहा है कि इज इट गोइंग ओवर द यस टॉप? यस समझ सर। आ ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिस्क्राइब लॉजिकली, थिंकिंग फ्रॉम द रिपोर्ट्स एंड वट एवर यू गेट हिस्ट्री, वट एवर हिस्ट्री इज अवेलेबल, इनफ। डोंट डिग टू मच, डोंट मेक देम अनकंफर्टेबल। सिर्फ अपने मेजर चीज मैंने क्या किया, हाउ आई फ्रेम द क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, केस टेकिंग, चूंकि मैं केस टेकिंग पढ़ा रहा हूं तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। कि बताओ कि कुछ लाइफ में ऐसी चीज हुई है क्या जिसका मन पे असर हुआ है क्या? कुछ अक्यूट इतने में हुआ है क्या? 8 दिन, 15 दिन, 2-3 महीने में, या इतने रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा पूछने का सीधा सीधा।
किसी की मौत, कहीं गुस्सा, कोई झगड़ा, कोई जमीन का लफड़ा, कोई किसी कहीं पर इनके पैसे ये हो गए, कहीं बहू से कुछ प्रॉब्लम आया, बहू के मायके वालों ने कुछ प्रॉब्लम की है क्या, या आपके ग्रैंडसन ने कुछ, क्योंकि देखो ग्रैंड माँ को ग्रैंडसन भी बहुत कुछ कुछ बोल देते हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी बहुत कुछ कुछ बोल देते हैं। जैसे मेरे पास में एक पेशेंट है ना, वो बोलती है ना कि बच्चे उसको ये कर देते कि दादी माँ चल जाओ, तुम उधर के घर में चल जाओ। दो बेटे के पास रहती तो दादी माँ जब ये तक जाती तो ग्रैंड चिल्ड्रन दादी माँ को बोलते, दादी माँ तुम उधर चल जाओ, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो दादी माँ बेचारी फिर अपना मन ये करके चल जाती, फिर उधर जाती तो उधर फिर उसको निकाल रहे। तो ऐसा कुछ है क्या, समझ लो, ऐसा कुछ डिस्पाइजिंग हो रहा है क्या, ऐसा कुछ आउटकास्टिंग हो रहा है क्या, ऐसा कुछ डिग्निटी हर्ट हो रही है क्या? कुछ भी इस तरीके से चलो। और दिमाग का है, दिमाग पे लोड क्या है, ठीक है। हार्ट का है तो इमोशन पे लोड क्या है, कहाँ पे दिल टूटा है ना। वो गाना है ना, दिल तेरा किसने तुझ तेरा छोड़ा, यूं तन्हा किसने तुझे छोड़ा, तकदीर ने हालात ने, है ना वो दयावान का गाना। इस तरीके से हमको सिंपल लॉजिकल चल रहा है, इसी तरह से चल रहा है सिंपल। डॉक्टर हनुमान के पिताजी ने डॉक्टर हनुमान को क्या कहा था कि द ट्रूथ वी मॉर्टल्स नीड अस मेक टू ब्लेस एंड कीप द ऑल वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट वरी डीप। बस एक पर्दा, एक से परत हमको पढ़नी है और इंफॉर्मेशन लीजिए। डोंट डिग टू मच, digging will not take you anywhere, trust me, I have done that in my practice in the initial days। फ्रस्ट्रेट होकर अपन ये करते हैं, जबकि अपने पास में इतना अच्छा ब्रेन दिया हुआ है ऊपर वाले ने कि हम उसको थोड़ा सा अगर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अगर हम एम्पैथी करें, थोड़ा सा अगर लॉजिकल सोचें, तो हमारे पास में, बट यू मस्ट नो the rubrics for this. You must read repertory every now and then thoroughly. Just reading it once, you will seldom remember it. If you keep reading it again and again, again and again, again, if the things go, और कुछ कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में अटकनी चाहिए कि क्या है ये, एंगर विथ वॉइस कंप्लेंट्स अब क्या है, स्पीच स्वॉलोइंग वर्ड्स क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कब आएगा, ये आप थोड़ा सा इस पर आप मतलब टेक इंटरेस्ट। कीन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर हनुमान ने कहा कीन ऑब्जर्वर, कीन मतलब विथ इंटरेस्ट। प्लीज रिमेंबर, इफ यू टेक इंटरेस्ट यू विल रिमेंबर, you will recollect. If you do not take interest, illa. Okay, any questions? Hello. Ideally in such cases I prescribe LM potency, but that boy did not have LM potency, so he said staphylococcus. I have thought of vanilla also, DD। बोथ्रोप्स भी मेरे दिमाग में आया था क्योंकि ब्लीडिंग है ना, अक्यूट में अपने दिमाग में ये दो रेमेडीज आती है। बोथ्रोप्स में भी स्पीच लॉस है, वैनिला बिकॉज एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर अ लव्ड वन, ऐसा मेरे दिमाग में था। शायद ये है क्या, ये मैंने डीडी में रखा था बाद में, आई थॉट अबाउट कि बोला शायद ये होगा, अपन बाद में स्टडी करेंगे, बट आई वाज वेरी श्योर अबाउट स्टैफिलोकोकस, सो आई गेव व्हाटएवर वाज अवेलेबल विथ हिम। तो ही सेड 30 है सर मेरे पास, मैंने 30 का वाटर डोज बना, एवरी आवर दे दो। एंड नेक्स्ट डे ही कॉल्ड कि सर अभी कब तक रखना है, मैंने क्या, बोले हाँ बात कर रही है अभी। तो मैं क्या ठीक है भाई, देते रहे मैंने जब तक डिस्चार्ज। थर्ड डे पेशेंट मेरा डिस्चार्ज ले लिया, मत रख, वो सब सैचुरेशन वगैरह मेंटेन हो रहा था, सब हो रहा था, चलो कॉपी जाओ। थर्ड डे शी वाज ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स, वो आदमी शिफ्ट करके डिस्चार्ज। दैट्स द केस। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? ओके, आई assume there are no questions. Okay, Mansi, can we end it now? Yes. Yeah, चलो। Thank you, sir. Thank you so much. It was really wonderful session and logical thinking, how to think logically in cases, such cases when we have very less data. So thank you so much for enriching us with this. Thank you everyone for joining, and thank you my team PHF. Thank you. Thank you. See you next month, first Thursday. And next month we are starting another series with
a surprise topic. Okay, with it's going to be like